Good morning. Today we will learn distribution system for electrical energy. Subject is power 1. So what is distribution system? हमने ट्रांसमिशन सिस्टम में देखा था कि जनरेटिंग स्टेशंस तक से लेके सब स्टेशन तक सप्लाई कैसे आ रहा है. उसमें प्राइमरी ट्रांसमिशन भी था और सेकेंडरी ट्रांसमिशन भी था. आफ्टर ट्रांसमिशन सिस्टम देयर विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें हम सब स्टेशन से आगे कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं. सो द अरेंजमेंट ऑफ कन्वेइंग इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम substations to various consumers is called distribution system. So there are mainly three components of distribution system. First is feeder, second is distributor, and third one is service mains. So here is the diagram for distribution system. So in the middle you can see S, that is substation. Substation से जो कंडक्टर कंज्यूमर्स तक इलेक्ट्रिक पावर लेके जा रहा है दैट इज द फीडर. सो आप फीडर देख रहे हैं, यहाँ पे 3 फीडर शो किए गए हैं. सो फीडर इज बेसिकली ये कंडक्टर जो कि सब स्टेशन से आगे इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. सो दैट इज द फीडर. उसके बाद जो सीबी है, सीबी या बीए या फिर एडी या फिर डीसी, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स. डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद सर्विस मेन्स. अब क्या है, हमने फीडर से कोई टैपिंग नहीं दी. मीन्स थ्रू जो करंट है थ्रू आउट द फीडर इज कांस्टेंट. बट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर से हमने टैपिंग्स ली हैं. जो आप सर्विस मेन देख रहे हैं ये एक तरह से, आप अगर रेजिडेंशियल बात करें तो ये एक तरह से ये हाउसेस हैं. ये हाउसेस में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा रहा है दैट इज थ्रू सर्विस मेन्स, जो कि हम जो पोल लगा हुआ है हमारे घर के बाहर, हम वहां से अपने एनर्जी मीटर तक जो सप्लाई लेके आ रहे हैं दैट इज फ्रॉम सर्विस मेन्स. तो जो सीडी है इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटर. तो डिस्ट्रीब्यूटर से हमने टैपिंग्स ली हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटर में वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, तो करंट है जो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूटर. तो फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर का जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो फीडर है उसमें जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा बिकॉज no tappings are taken from the feeder, but in distributor tappings are taken to supply electrical power from distributor to the residential consumers with the help of a service mains. तो डिस्ट्रीब्यूटर्स में टैपिंग्स रहेंगी. और सर्विस मेन क्या है, सिंपली ये कंडक्टर है जो कि फ्रॉम द आउटर पोल टू द आवर एनर्जी मीटर जो सप्लाई लेके आ रहा है दैट इज द सर्विस मेन. सो दीज आर द पार्ट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. So feeder. So feeder is a conductor, as we have seen in the diagram, which connects the which connects the substation to the area where power is to be distributed. No tappings are taken from feeder. Current in it remain the same throughout because no tappings are taken from the feeder, so current remains the same. The main consideration for designing the feeder is its current carrying capacity because it is same, so we can design the feeder with reference to the current carrying capacity. Then the distributor, it is also a conductor from which tappings are taken for supply to the consumers. As we have seen in the diagram, current throughout the distributor is not constant because tappings are taken at various places along its length. Then third one is service mains. It is a small cable which connects the distributor to the consumer's terminal. Means जो energy meter तक सप्लाई लेके आ रहा है फ्रॉम पोल टू द एनर्जी मीटर दैट इज द सर्विस मेन. बेसिकली इट इज अ केबल. सो दीज आर पार्ट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. देन द क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. So there are two types of classification. First one is according to the nature of current. Distribution system can be DC, it can be AC distribution. AC distribution is adopted universally. So in case of DC distribution system, again there are two types of distribution system. First is 2-wire DC system, other is 3-wire DC system. In case of AC distribution system, there are two types again, primary distribution and secondary distribution. We will discuss all these classification in coming slides.
The system which is universally adopted is AC distribution system. So second classification is according to the scheme of connection. First one is radial system, second is ring main, and then third one is interconnected system. So first of all, we will discuss alternating current distribution system. In alternating current distribution system, there are two types of distributions. First is primary, second is secondary. अब यहाँ देखिए आप, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? सब स्टेशन से। जो जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक सप्लाई आ रहा है वो ट्रांसमिशन सिस्टम में है, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो वो ट्रांसमिशन सिस्टम है। सब स्टेशन के बाद जो भी सिस्टम शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिकल सप्लाई का, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें क्या है, जैसे सब स्टेशन से हमें 66 केवी या 33 केवी हमें मिल रहा है, तो हम वो डायरेक्टली जो हम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को दे देते हैं कि ये वोल्टेज है, ये हम उनको डायरेक्टली सप्लाई कर देते हैं, या फिर लार्ज कंज्यूमर्स या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स वो अपना ट्रांसफार्मर खुद इंस्टॉल करके उसको स्टेप डाउन कर सकते हैं उनके लोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो जो तो हम बिग कंज्यूमर्स को सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो हमारे घरों में आ रहा है, हम ऐसा तो नहीं कि हम अपना ट्रांसफार्मर लगा के उसको स्टेप डाउन कर रहे हैं। हमें जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो प्रॉपर जितनी हमें वोल्टेज चाहिए, दैट इज 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई, वो हमें पूरा उस चीज़ को बना के दे रहा है। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कि अगर 11 केवी है, 11 केवी को किस में कर रहा है? 400 वोल्ट में, या 440 वोल्ट कह सकते हैं आप। तो दिस 440 वोल्ट इज द लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज मीन्स वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेजेस। आर वाई बी तीन फेज हैं, तो voltage between RY is 440, voltage between BY is 440, and between other two phases is also 440. This is line voltage. तो उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या है? 440 इज लाइन वोल्टेज, 230 इज फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज मीन्स वोल्टेज बिटवीन एनी फेज एंड न्यूट्रल। वही हमें अपने घरों में चाहिए, एक फेज और एक न्यूट्रल, दैट इज 230 वोल्ट। तो ये जो कंज्यूमर्स को हम कनेक्शन दे रहे हैं थ्रू सर्विस मीन्स, एज यू ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो डिस्ट्रीब्यूटर से आगे कंज्यूमर्स को कनेक्शन दे रहे हैं थ्रू सर्विस मीन्स, ये सारा जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद का, जो कि लो वोल्टेज पे हम कैरी करते हैं, दैट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी वाला आ गया जो कि हम लार्ज कंज्यूमर्स को या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, दैट कम्स अंडर प्राइमरी। एंड जो हम डिस्ट्रीब्यूशन लगा के, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज़ करके उसको स्टेप डाउन करके जो कंज्यूमर्स को हम लेस वोल्टेज पे सप्लाई दे रहे हैं, दैट विल बी अंडर secondary distribution. So this is AC distribution system. So as we discussed, primary distribution system क्या है? Power is supplied to various substations for distribution or to big consumers at this voltage. या हम छोटे substations को दे सकते हैं, 33 kV दे दिया, या फिर जो बड़े consumers हैं उनको हमने दे दिया। Most commonly used primary distribution voltages are 11 kV, 66 या फिर 33 kV. This system is carried out by three-phase, three-wire system. Three-phase RYB, three wire means RYB. इसमें हम कोई फोर्थ वायर नहीं यूज करते। फोर्थ वायर है मतलब न्यूट्रल, वो हम सेकेंडरी में यूज करेंगे बिकॉज हमने सिंगल फेज सप्लाई देना है कंज्यूमर्स को, दैट इज वन फेज एंड वन न्यूट्रल। तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये it is carried out by three-phase, three-wire system. Then secondary distribution system, it includes the range of voltages at which the ultimate consumer utilize the electrical energy delivered to them. Carried out at 400 means line voltage, 230 means phase voltage. It is carried out by three-phase, four-wire system. तो फोर्थ वायर यहाँ पे कौन सी है? थ्री फेज मीन्स RYB, फोर्थ वायर इज फॉर न्यूट्रल। It is understood that electrical power is generated, transmitted and distributed in alternating current only. But for certain applications we require DC supply. For example, DC motors, electrochemical processes,
or for storage battery reserves. DC is necessary. For these purposes, AC power is converted into DC using rectifiers. So, two types of DC supply from the substations can be obtained. First is two-wire distribution system and second is three-wire distribution system. Two-wire consists of two wires, positive and negative. One is for outgoing and other is a return, that is negative wire. The loads such as lamps, motors, etc. are connected in parallel between these two wires. The system is never used for transmission purposes because of its low efficiency, but it may be employed for distribution of DC power. But we are not using this, we are using AC distribution. Three wire, it consists of two outer and a middle or neutral wire which is earth at the substation. So इस केस में हमें दो वोल्टेजेस मिल जाएंगे, एक तो न्यूट्रल और प्लस में और एक न्यूट्रल और नेगेटिव में, और तीसरी वोल्टेज एक वोल्टेज तो हमें मिल जाएगी बिटवीन प्लस एंड न्यूट्रल, एक मिल जाएगी नेगेटिव और न्यूट्रल जो कि सेम लेवल होगा दोनों का, एक मिल जाएगी हमें प्लस और नेगेटिव में जिसका लेवल डबल होगा उनसे। तो दो वोल्टेजेस वी विल गेट एट द आउटपुट एंड द वोल्टेज बिटवीन द आउटर्स इज ट्वाइस द वोल्टेज बिटवीन either outer and neutral wire. The principal advantage of this system is that it makes two voltages at the consumer terminals between any outer and neutral and between the outers. Load requiring high voltages are connected across the outers, whereas load which requires low voltages, they are connected between either outer and the neutral. So here you can see two outers and the neutral. जो फर्स्ट आउटर और न्यूट्रल में एट इज 240 एंड देन जो इनर और न्यूट्रल में है वोल्टेज एट इज 240. दिस इज फॉर लो वोल्टेज लोड्स, और जो पूरा लोड है, जो पूरा वोल्टेज मिल रहा है हमें आउटर एंड इनर में, इट इज 280, जो कि हाई वोल्टेज रिक्वायरिंग लोड्स हैं जैसे मोटर्स, वी कैन कनेक्ट इट टू द आउटर्स. देन इज थ्री टाइप्स ऑफ जो हमारे एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इनको हम थ्री वेज से कनेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज रेडियल, सेकंड इज रिंग मेन, थर्ड वन इज इंटरकनेक्टेड सिस्टम. अब जो रेडियल सिस्टम है इसमें क्या है, सेपरेट फीडर्स हैं जो दे रेडिएट फ्रॉम अ सिंगल सबस्टेशन एंड फीड द डिस्ट्रीब्यूटर्स एट वन एंड. These systems are employed for low voltages only. It is the simplest distribution system and has the lowest initial cost. So ये रेडियल सिस्टम है, इसमें सोर्स है जो कि सबस्टेशन है, वहां से फीडर जा रहा है, एक फीडर है वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को उसने सप्लाई कर दिया. ऐसे ये एक ही फीडर है जो कि बिल्कुल लीनियर है, मीन्स कोई रिंग नहीं बन रहा, ये बिल्कुल लीनियर है. ये जैसे यहाँ पे दो डिस्ट्रीब्यूटर्स दिखाए गए हैं, आगे डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस मीन्स के थ्रू लोड को दे रहा है सप्लाई. तो ये जो रेडियल है इसमें चलते चलते जो लास्ट वाला, जैसे ये लास्ट में पहुंचेगा, जो लास्ट वाला डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई देगा, वहां पे कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी वोल्टेज ड्रॉप होता जा रहा है. जैसे जो फर्स्ट नंबर पे लगे हुए हैं कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगे जो लोड लगा हुआ है उनको बिल्कुल प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा, पूरा मेंटेन रहेगा वोल्टेज. यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो आगे जाएगा, तो कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम इस सिस्टम में रहेगा. रेडियल सिस्टम का ये कुछ ड्रॉबैक है. The end of the distributor nearest to the feeder point will be heavily loaded and would be subject to serious voltage fluctuations when the load on the distributor changes. The consumers are dependent on a single feeder and a single distributor. Any fault on the feeder or distributor cuts off supply to the consumer who are on the side of the fault away from the substation. Means कोई भी fault आता है तो उनको कहीं और से सप्लाई का कोई सिस्टम नहीं है इसमें. ये बिल्कुल रेडियल सिस्टम है, एक तरह से सिर्फ एक ही फीडर है इसमें, तो those consumers will be cut off from the supply. Due to these limitation, these systems are used only for short distances. Then is the ring main system. इसमें एक लूप बनेगा. The primaries of distribution transformers form a loop. The loop starts from the substation bus bars, makes a loop through the area and then return to the substation. ये है
इसमें फीडर एक लूप बना रहा है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई दे रहा है। फीडर है, एक लूप बना लिया इसने, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई दे रहा है। मीन्स अगर कोई फॉल्ट भी आता है तो वो अदर एंड से उसको सप्लाई मिल जाएगा, उसका सप्लाई इंटरप्ट नहीं होगा, एज देयर वाज केस इन रेडियल सिस्टम। देन इज इंटरकनेक्टेड। अब इंटरकनेक्टेड में क्या है, जैसे हमने रिंग मेन में देखा या रेडियल में देखा, सोर्स एक ही है। इसमें हम एक या सॉरी दो से ज़्यादा सोर्सेज से सप्लाई देंगे फीडर को। When the feeder ring is energized by two or more sources, it is called interconnected system. Obviously, the reliability of the system will be increased. Any area fed from one generating station during peak load hours can be fed from the other generating station. This reduces reserve power capacity and increases efficiency of the system. Reserve power capacity means कोई भी जनरेटिंग स्टेशन है वो डिज़ाइन होता है कि पीक लोड कितना आएगा उस पर, ठीक है, जो मैक्सिमम डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग। तो हमें ज़रूरी नहीं कि हमें उसी के हिसाब से डिज़ाइन करना है इस सिस्टम में। तो इसमें क्या है, जो पीक लोड्स हैं वो हम और जनरेटिंग स्टेशन से जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको फीड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द इंटरकनेक्टेड सिस्टम। सो फीडर ने रिंग तो बनाया ही है, मोर ओवर देयर इज सोर्स 1 एंड सोर्स 2। रिंग मेन में सिर्फ एक ही सोर्स था, यहाँ पे आप जनरेटिंग स्टेशन कह सकते हो इनको, या सब स्टेशन भी कह सकते हो। ये जो सोर्स है ये मतलब दो जनरेटिंग स्टेशन से हमने सप्लाई दिया। मीन्स अगर कोई सोर्स फेल भी होता है तो वो दूसरे सोर्स से सप्लाई हम दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज्ड। So underground cables, these are the main parts of underground cable. First one is core or conductor, that are phases R, Y, B. Then the insulation over the conductors, lead sheath over that insulation, then bedding, armoring and serving. So this is diagram for the parts of the cable. Conductors, that is core, उसके ऊपर है इंसुलेशन। इंसुलेशन डिपेंड करते हैं कितनी वोल्टेज पे वो करंट लेके जा रही है, वो जो कंडक्टर है कितनी वोल्टेज पे करंट जा रहा है उस हिसाब से उसका इंसुलेशन होगा। देन द लेड शीथ, देन द बेडिंग, देन आर्मरिंग, देन आउटर वन इज द सर्विंग, दैट इज ओवरशीथ। So core, a 3-core cable has 3 conductors. The conductors are made up of copper or aluminium. So insulation over the conductor is of rubber impregnated paper, and the insulation, the thickness of the insulation depends on the voltage it has to withstand. Then lead sheath surrounds the insulation. It protects the conductor and insulation from moisture, acids, dampness, etc. Then bedding. In order to avoid corrosion of lead sheath, the sheath is covered with jute fiber material. It is to protect metallic sheath from metallic injuries. Then armoring. To avoid any damage to the cable during its handling or its laying process, it is the galvanized steel wired armoring which is over the bedding. Then the serving. In order to protect armoring from atmospheric conditions, a layer of material like jute is provided over armoring. This is serving. So these are the parts of the cable. So these are methods for laying underground cable. First one is direct method, direct laying, then using troughs. These are methods for laying underground cables. First one is direct laying, then is using troughs, and then last one is drawing into pipes. A layer of sand of 10 cm is spread at the bottom of trench. जो हमने ट्रेंच बनाया है केबल के लिए उसमें हम 10 सेंटीमीटर मोटी सैंड डालते हैं, फिर उसके ऊपर हम केबल को ले डाउन कर देते हैं ऑन दैट सैंड बेड। फिर उसके ऊपर फिर से हम एक सैंड का कवर डालते हैं, सैंड का लेयर है,
and over it a layer of brick. Is using troughs. The trough is made up of cement or stoneware or cast iron. उस ट्रफ को हम जिस रूट पे हमने केबल डालना है उस पे वो ट्रफ को डाल देते हैं हम। जो स्पेस है ट्रफ के जो अंदर वाला स्पेस है जो कि केबल के साइडों वाला स्पेस है उसमें हम बिटुमिनस कंपाउंड से उसको कवर करते हैं। फिर जो वो ट्रेंच हमने बनाया है जिसमें हमने ये ट्रफ डाला है उसको हम सॉइल से फिल कर देते हैं। Bituminous compound is mainly added because of its quality to resist any absorption of moisture or water. Last one is drawing into pipes. इसमें क्या है जो pipes हैं wrought iron या stoneware की they are laid in the ground with manholes along the cable route. Then cable is pulled into the position from manholes. नेक्स्ट इज फॉल्ट फाइंडिंग। जो अंडरग्राउंड केबल्स हैं उनमें फॉल्ट फाइंडिंग थोड़ा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू ओवरहेड लाइंस बिकॉज देयर द फॉल्ट इज विजिबल, बट इन केस ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स द फॉल्ट इज नॉट विजिबल, इवन we don't know that at what position, at what point the fault has occurred. So there are two tests. First one is Moore loop test and second is Worley loop test for short circuit or earth faults finding. इसमें क्या है लाइक एक सेटअप होगा जो कि अब कोई केबल में फॉल्ट आ गया शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट, एक सेटअप होगा जो व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करेगा, वो हम एक एंड पे लगाएंगे केबल के। इन सेटअप से हमें ये पता लग जाएगा कि कितने मीटर या किलोमीटर पे फॉल्ट है। उतने किलोमीटर पे जाके हम डिग करके उस केबल को निकाल लेंगे एंड the fault can be rectified. Means basically ये जो मेथड्स हैं ये हमें ये बता देंगे कितने डिस्टेंस पे फॉल्ट है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट। और हम पूरी केबल निकालेंगे फिर देखेंगे फॉल्ट कहाँ पे है, तो ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। सो इन टेस्ट से हम ये पता कर लेंगे कितने डिस्टेंस पे फॉल्ट है। वी विल डिग ओनली दैट पार्ट and then fault can be rectified. First is Moore loop test. So it is for earth fault or short circuit faults. इसमें क्या है साउंड केबल जो बिल्कुल सही केबल है वो हम साथ साथ जो फॉल्टी केबल है, फॉल्टी केबल अंडरग्राउंड है, जो साउंड केबल है जो बिल्कुल सही केबल है उसको हम ग्राउंड लेवल पे उसके साथ साथ फॉल्टी केबल के रन करेंगे। So these tests are based on the principle of Wheatstone bridge. So here's the setup. ये faulty केबल दिख रही है, CD वाली है जो, इसके F पॉइंट पे समझो फॉल्ट आया, we are just assuming it कि ये पॉइंट F है। हमने इस F का डिस्टेंस पता करना है, मीन्स ये जो X रेजिस्टेंस यहाँ पे शो हो रही है इसका डिस्टेंस कितना होगा हमने वो फाइंड करना है। तो ये हमने ऊपर साउंड केबल है जो AB ये डाल दिए हमने उस फॉल्टी केबल के साथ साथ, और लास्ट में उन दोनों का कनेक्शन बना दिया लो रेजिस्टेंस कनेक्शन। सो दिस इज सेटअप। सो इट वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। सो जब बैलेंस्ड होंगी कंडीशंस उस केस में जो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल कहता है P/Q इज इक्वल टू R/F, क्योंकि F पॉइंट पे अर्थ फॉल्ट आया हुआ है तो एक तरह से ये ब्रिज जैसा बनेगा P/Q, एक R पार्ट और एक X R/X। दोनों साइड्स पे हमने 1 1 ऐड कर दिया। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी P+Q डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू R+X/X। अब आप डायग्राम में देखिए जो R+X है इसको हम 2R लिख देंगे। क्यों? जो स्मॉल r है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द केबल, जो हेल्दी केबल है जो साउंड केबल है तो उसका रेजिस्टेंस है, तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है फॉल्टी केबल की। जो सेम फॉल्टी केबल जो फॉल्टी केबल है सेम उसी के टाइप का केबल हमने जो अर्थ पे रन हो रहा है वो डाला है। तो जो R+X होगा बेसिकली P, Q, R और X क्या है, ये रेजिस्टेंसेस हैं। तो
आर प्लस एक्स को आप डायग्राम में देखिए, इसको हम 2r लिख सकते हैं। सो p प्लस क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू 2r बाई एक्स, वेयर r इज रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द केबल व्हेन फ्री फ्रॉम फॉल्ट। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू इंटू 2r। ये x रेजिस्टेंस है। अब हमने इस x का डिस्टेंस फाइंड करना है, मींस जो ये CF है इसका रेजिस्टेंस x है, इसका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फिर हमें पता लग जाएगा कि जो C पॉइंट से फॉल्ट इतनी दूरी पे है। ओके, तो अब जो स्मॉल l है वो है लेंथ ऑफ दी जो हेल्दी केबल है, जो साउंड केबल है। मींस अगर l डिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि अगर l रेजिस्टेंस है, अगर l डिस्टेंस है, अगर r रेजिस्टेंस है तो l डिस्टेंस है। और सेकंड नंबर पे हम कहेंगे अगर x रेजिस्टेंस है तो कितना डिस्टेंस है, इट वुड बी x इंटू एल बाई आर। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे एल बाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी एल बाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया। इट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ फॉल्ट फ्रॉम टेस्टिंग एंड। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, आर आर कट गया, 2q डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू इंटू एल। q का वैल्यू भी है हमारे पास, p का भी है, q का p एंड q दोनों का है और l का भी है, कितनी लेंथ की हमने केबल डाली है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके हम डिस्टेंस ऑफ द फॉल्ट फ्रॉम द टेस्टिंग एंड निकाल सकते हैं। सो दिस इज मूरे लूप टेस्ट। सेकंड इज वर्ले लूप टेस्ट। इसका डायग्राम ये है। तो इसमें हम मानेंगे कि फॉल्ट है वो F पे है और फॉल्ट आया यहाँ पे। इसमें हम एक बार टेस्टिंग करेंगे जो की K2 दिख रही है एट पोजीशन 1, दूसरी बार एट पोजीशन 2। हम दो इक्वेशंस निकालेंगे, बाकी साउंड केबल डाली है हमने सेम, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। सबसे पहले जो की है इट शुड बी K2 है, जो की K2 है एट स्टार्ट 1। हमने जब उसको 1 पे किया तो जो अर्थ है वो है एट पॉइंट F। तो हमारा बैलेंस कंडीशन क्या होगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाय जितना इसका जो हमने रहा ये वेरिएबल की है ना, ये S आएगा यहाँ पे, जो बिल्कुल एक तो P है Q है, एक और जो वेरिएबल की है इट वुड बी S। तो जब हमारा की K2 पोजीशन 1 पे होगा तो उस कंडीशन में अंडर बैलेंस कंडीशन P बाई क्यू इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S प्लस एक्स। जब स्टड 1 पे है तो हम उस केस में S का वैल्यू S1 कहते हैं, क्योंकि जब हम उस की का पोजीशन स्टड 2 पे करेंगे तो उसका वैल्यू वी विल अज्यूम S2। सो हियर इट विल बी S1। So S1 is the value of variable resistor S when the key K1 it's K2 is it is here K2 is set at stud 1 to get the balanced condition. So add 1 to both sides, we will get equation this x plus S1 is equal to R plus x plus S1 divided by Q into Q divided by P plus Q. From here we will find out the value of x. So x comes out to be this. This is equation number 1. अब सेकंड इक्वेशन के लिए जो की K2 है इट विल बी एट स्टड 2। इन दिस कंडीशन जो बैलेंस है वो मिलेगा at the value of S as S2. P by Q is equal to R plus X divided by S2. यहाँ से हम Q into R plus X का वैल्यू निकाल देंगे, that will be PS2 from equation 1 and 2. इक्वेशन 1 में हम Q R plus X का वैल्यू PS2 डाल देंगे and we will solve it for X. अब X into L by R सेम जैसा कि हमने मूरे लूप टेस्ट में किया था, ये हमारा डिस्टेंस होगा फ्रॉम द टेस्टिंग एंड टू द फॉल्ट पॉइंट। तो एक्स एल बाई आर इज इक्वल टू पी का वैल्यू है हमारे पास, S2 का वैल्यू है, S1 का है, L का है और R का है। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस एट विच द फॉल्ट हैज अकर्ड इन द अंडरग्राउंड
cable. So this is comparison for overhead and underground systems. Overhead systems are cheap, whereas the underground systems are expensive, because यहाँ पे जो cable है that is costlier as compared to the bare conductor that we are using in overhead systems. Moreover, the process for laying out the cable is also expensive. Appearance is not good in overhead, but appearance is good as wires are not visible in case of underground system. Overhead systems can work up to very high voltages, 400 kV, even up to 750, and so on and more also. Underground systems have some limitation. They can work only up to 66 kV because there is a limitation for insulation of the cable, because insulation depends on the working voltage. Repair work is easy in overhead system because fault finding is easy, but repair work is difficult. Less insulation cost in case of overhead because conductors are bare, they don't have any insulation over them, but installation cost is high in case of underground system. Erection cost is less in overhead, whereas erection cost is high in case of underground systems. Fault finding is obviously easy in case of overhead, but it is difficult in underground systems. Public safety is more in underground as compared to overhead systems. There are more chances of accident in overhead because safety is less, and less chances of accident in case of underground systems. So this is comparison for overhead and underground systems. Thank you.